اب وہ دعا جو عطا فرمائی، محفوظ ہاتھوں نے اس کو محفوظ فرمایا، کتابوں نے ان کو لکھا، اولیاء نے ان کو آزمایا۔ اب اولیاء کی آزمائش میں صرف ایک آزمائش بتاتا ہوں، اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اور جس مقصد کے لیے پڑھا اور جس نعمت کے لیے پڑھا اور جس عطا کے لیے پڑھا اور جس چاہت کے لیے پڑھا اور جس مراد کے لیے مانگا، اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کی نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں یا تھوڑے عرصے میں، جس میں اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت تھی، اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ حضرت علی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے، جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی بندہ درد سے کرہاتا ہے، غم سے کرہاتا ہے، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی۔ تو بہت پریشان اور حیران ہوا کہ کرہانے کی آواز آ رہی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں۔ سمجھ گئے اندر مستورات ہیں، باپردہ خواتین ہیں۔ وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب یہ بستر پہ پڑی ہے، جس کو ہم لفظ کہتے ہیں کہ اس کا نچلا حصہ پیرالائز ہو گیا، اس پر مسائل اور مشکلات۔ تو آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھتی، اندر آوازیں خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پوچھو جا کے۔ آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں، سو نہیں سکی، در سے کرہا رہی تھی، اس کو نیند آ گئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں، ان میں سے ایک گھوڑا تھا، جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے آ کے حضرت علی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں۔ فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، یہی دعا جو ابھی پڑھنا شروع کر دی، اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی، ٹوٹی ہوئی، نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا، سب سے سبک رفتار تھا، اور سب سے لاجواب تھا۔ آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی، کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دعا پڑھی، اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا، اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا، لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا، فرمایا مت پیو، کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے، اور اس کے اندر جو تنکے خاک ہیں، مٹی ہے، وہ نکل جائے، اور پھر شفاف پانی جب نکلا، فرمایا یہ پانی پیو، مشکیزیں بھرو، سواریوں کو پلاؤ۔ قافلہ چلتا رہا، آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا، اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں، آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ۔ آپ نے کھانے کو رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا، اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے۔ خوش قسمت ہیں آپ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے موتی لاتا ہوں،
ढूंढ ढूंढ के। सारा दिन मेरा काम ही यही है, सारा दिन मेरा शोबा यही। मैं उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया और कपड़ा डाल के फरमाया, दुआ फरमाई, ये अमल फरमाया, ये दुआ पढ़ी और उसके बाद फरमाया देखो खा लिया। और फरमाया हमारा 17 दिन का सफर था, उस 17 दिन में हमने खाया, लोगों को खिलाया, जहां लोग आते थे उनको बिठाते थे। दस्तरखान हमारा था चंद अफराद का, फिर सैकड़ों लोगों ने खाया। 17 दिन के सफर में थोड़ी सी कमी भी ना हुई। जब घर लौटे तो वही का वही हमारा खजाना, खाना, वही सारा तोशा मौजूद था। आगे तशरीफ ले गए तो एक तिजारत में एक देखा तो एक बंदा है ठीकरियों पे ठीकरियां मार रहा है, ठीकरियों पे पत्थर मार रहा है, ठीकरियों पे ठीकरियां, पत्थर पे पत्थर। आप उसकी तरफ तशरीफ ले गए, आपने उसको जाके देखा, लगता है कि तू पुराना जुआरी है। उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूं, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। अपनी आदत को पूरा करने के लिए पहले ताश के पत्ते पे पत्ता मारता था, अब ठीकरे पे ठीकरा, पत्थर पे पत्थर मार रहा हूं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर तौबा की नियत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूं, अमल भी करता हूं। तो ऐसा कर, पत्थर पे पत्थर मार, तेरा हर पत्थर सोने का बनता जाएगा। आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा और जैसे बेचारा बेबसी की हालत में पहले मार रहा था, आपने दुआ करनी शुरू कर दी, ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी और दुआ पढ़ते पढ़ते देखा तो लोगों ने पत्थरों की शक्लें बदलना शुरू हो गई और जो पत्थर भी उसके हाथ में आया था, उसके हाथ में आया था, वो चंद पत्थर थे, पत्थर पे पत्थर मारे, वो सारे पत्थर सोने के बन गए। आपने सारा सोना उसको दिया, चल पड़े और वो पल भर में गनी बन गया और वो पल भर में मालदार बन गया और वो पल भर में शहंशाह बन गया। आप सफर में तशरीफ ले जा रहे हैं, सफर में आगे जाते जाते देखा कि एक शख्स है, उसके साथ एक बच्चा है, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा गधा है और वो सारे पैदल चल रहे हैं, गधे को सवारी को साथ लिए हो। तो आपने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक सांप है जो इस गधे के पे मुसल्लत है, वो सामने बैठा है, वो नीचे नहीं उतर रहा। हमने मारने की कोशिश की है, उसकी फुंकार से असा जल जाता है और जला हुआ असा दिखाया, डंडा जला हुआ दिखाया कि फुंकार से डंडा जल जाता है। वो मुसल्लत है गधे पे, हम पैदल चल रहे हैं, मंजिल पे है, सांप मुसल्लत है, इसका कोई हल नहीं। आपने फरमाया इस गधे को इस झाड़ी से, इस दरख्त से बांध दो और बांध के आप किबला रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी और फरमाया फिर दूसरे रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी और तीसरे रुख हुए और दुआ पढ़ने के बाद आपने उस सांप पे फूंक मारा, सांप चोंटी बन के छलांग लगाई और गायब हो गया। तो उन्होंने पूछा आका ये क्या था? फरमाया ये तुम्हारे ऊपर एक दुश्मन जिन मुसल्लत था जो के तुम्हारी जानों और इज्जतों का लुटेरा था, मैंने उसको फना कर दिया। इस दुआ का आखिरी वाकया जो उस काफले में हुआ वो भी सुन ले, फिर हम बैठ के इस दुआ को पढ़ते हैं। क्या ख्याल है? कितना जबरदस्त अमल है। आप फरमाए जिस कयाम तक पहुंचे, जहां आपकी काफले की आखिरी मंजिल थी, उस जगह पहुंचे तो वहां एक सराय थी। पहले सराय होती थी जहां मुसाफिर ठहरते थे, वहां एक सराय थी। आपका काफला सराय में नहीं ठहरा, एक तरफ कयाम फरमाया और फरमाया वुजू का पानी नहीं था। सराय में खातून थी, वो कहने लगी अगर वुजू का पानी लेना है तो इतने पैसे लगेंगे और इतना माल लगेगा, और उससे बढ़ चढ़ के उसने पैसे मांगे। तो आपने ऐसे दोनों हाथ किए और अल्लाह से दुआ की और दुआ करने के बाद ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। ये दुआ पढ़ते गए, फरमाया उसके बाद बैठ गए जैसे इंतजार फरमा रहे। थोड़ी ही देर गुजरी, 3 ऊंट आए, उन 3 ऊंटों पे मशकीज़े पानी के भरे हुए थे, वो आके सामने बैठ गए। उनके साथ कोई मर्द नहीं था, औरत नहीं था, बच्चा नहीं था, लगाम हाथ में नहीं थी, वो बैठ गए और बैठने के बाद 3 ऊंटों को
उनमें से पानी था। आपने फरमाया अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है। और अपने मशकीज़े वो सारे ले लिए, रख लिए अपने पास। वो ऊंट चले गए, गायब हो गए। लोग हैरान हैं। आखिरकार आपके गुलाम ने आपसे पूछा, आका अगर आप ये दुआ हमें सिखा दें, चश्मे फैज से गर एक इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। आका अगर आप ये दुआ फरमा दें तो आपकी शफकत अता और इनायत होगी। अब वो दुआ जो अता फरमाई, महफूज हाथों ने उसको महफूज फरमाया, किताबों ने उनको लिखा, औलिया ने उनको आजमाया। अब औलिया की आजमाइश में सिर्फ एक आजमाइश बताता हूं। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा और जिस मकसद के लिए पढ़ा और जिस नेमत के लिए पढ़ा और जिस अता के लिए पढ़ा और जिस चाहत के लिए पढ़ा और जिस मुराद के लिए मांगा, अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने उससे फौरी अता फरमाया, वरना उसकी निस्बत अता फरमाई, और वरना चंद लम्हों में अता फरमाया, वरना चंद दिनों में या थोड़े अरसे में, जिसमें अल्लाह की तरफ से कोई मसलिहत थी। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। जल्दी या देर में अता हुई है, जल्दी या देर में अता हुई है। आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द हुआ हो, हमें याद नहीं। क्या ख्याल है, इस दुआ पे थोड़ी सी तवज्जो ना हो जाए? आए उस दुआ को बैठ के हम भी पढ़ते हैं, उस मुनाजात को हम भी बैठ के पढ़ते हैं, उन कायनात के राजों को आज हम भी अपने सीने में समोते हैं जो चले आ रहे हैं। याद रखिएगा, ये वो अल्फाज पढ़ रहे हैं आज जो आपकी जिंदगी के दिन रात बदल देंगे। खुदा से मांगने, अल्लाह से मांगने के तरीके, अल्लाह से मांगने के सलीके, और वो राज हैं, ये राज हैं जो ये दुआ पढ़ रहे हैं आज आप, ये अल्फाज बैठ के पढ़ रहे हैं। इन राजों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। बस शर्त एक बात याद रखिएगा, इसकी सिर्फ एक शर्त है, वो है यकीन, यकीन, यकीन। जितना कामिल यकीन और जितना कामिल एतमाद और जितना कामिल एतेकाद और जितनी कामिल तवज्जो और जितनी कामिल ध्यान और जितनी कामिल अता होगी और जितना कामिल यकीन, इंशाअल्लाह हैरत अंगेज अमल है। अब पहले वो दुआ मुझसे सुन लें गौर से, तवज्जो से। वो अल्फाज हैं जो मैं एक बात सोचता हूं, दुआ से पहले मैं एक बात बता दूं, एक बात सोचता हूं। ये तो एक काफिले में 17 दिन का सफर था, और 17 दिन के सफर में चंद वाकयात हुए, और चंद वाकयात में उस बंदा खुदा ने ये रिवायत लिखी है। हज़रत अली की सारी जिंदगी में मैं हैरान होता हूं, उन्होंने इस दुआ को कहां कहां पढ़ा होगा, कहां कहां मांगा होगा, कहां कहां आजमाया होगा, और कहां कहां बरकतों के दरवाजे, नेमतों के दरवाजे, रिज़्क़ अता और शफकत के दरवाजे खुलवाए होंगे। ये खबर नहीं उनकी सारी जिंदगी में कितने लोग इससे फैज़याब हुए होंगे, कितने लोगों ने इससे बरकत पाई होगी, और कितने लोगों ने इससे सादत, नेमत, अता और शफकत पाई होगी। ये मैं गुमान नहीं कर सकता। आए बिस्मिल्लाह करके इस दुआ को पहले सुनते हैं। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। बस यही मुख्तसर दुआ है। इस दुआ के सारे राजों में जो राज है वो लफ्ज या वहाब है। असल में इस दुआ को याद करें। हम बैठ के इसको तवज्जो से पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन इसको याद करें, फिर इसको दिल पे उतारें, फिर दिल की गहराइयों में ले जाएं, फिर अंदर के दिल के राजो नियाज इस दुआ में शामिल करके इस दुआ को अल्लाह के साथ राजो नियाज में शामिल करें, फिर अल्लाह से जो चाहे मनवा लें। पढ़ें, ऐसा करें। अपने सारे दुख, अपनी सारी तकलीफें, अपनी सारी दिल के राजो नियाज, अपनी सारी आसें, अपनी सारी उम्मीदें बैठ के अपने दिल में रखें। मेरा दर्द, मेरा गम, मेरी दुनिया के मसाइल, मेरी आखिरत के मसाइल, मेरी मौत के मसाइल, मेरी औलाद के मसाइल, मेरे घर के मसाइल,
मेरी जिंदगी के मसाइल, मेरी जिंदगी में इज्जत, मेरी जिंदगी में तरक्की, मेरी जिंदगी में रिस्क, मेरी जिंदगी में दौलत, मेरी जिंदगी में सेहत, मेरी जिंदगी में मुश्किलात और कर्जों का हल, बे औलादी, नाकामी, परेशानी, अच्छा मुझे सब कुछ मिल गया, मेरी ऐसा ना हो मेरी नस्लों से लुट जाए, मेरी नस्लों से लुट जाए, मेरी नस्लों से लुट जाए, मेरी नस्लें फकीर हो जाएं, फना हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, नाकाम हो जाएं और नाकामियों में रुल जाएं, बर्बादियों में बर्बाद हो जाएं। इन सब का तस्वुर कर लिया, अपनी आसें, अपनी उम्मीदें, अल्लाह मेरी दुनिया बेहतर हो जाए, फिर दुनिया हसनतम, अल्लाह मेरी आखिरत बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए, और फिर आखिरत हसनतम। इन सारी चीजों का तस्वुर, इन सारी चीजों का ध्यान, इन सारी चीजों का इस्तेहजार कर लिया। अब डूब के मेरे साथ पढ़े, या वहाब हबली मिन निअमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। फिर डूब के पढ़े, या वहाब हबली मिन निअमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। या वहाब हबली मिन निअमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल